Hello students, good morning. How are you all? Okay, so in today's lecture, first we see our example number 30. In the last lecture, we seen example number 29. And in example 29, we seen the addition, subtraction and multiplication are binary operation on capital R, but the division is not binary operation on capital R. But the division is a binary operation on non-zero R. Okay? That means set of non-zero real numbers. So today I am going to teach you the subtraction and division are not binary operations on capital N. So let's see, and we have shown that. That means our 50% work is complete. So let's see. Okay, for subtraction, minus from n cross n to n is given by a comma b is equal to a minus b. Okay. So this is your operation, binary operation, because subtraction, so we may write a minus b, and here minus is our operation. Okay, so minus is a symbol of operation. So here a and b are natural numbers. That means a is equals to 1 2 3 up to so on, and b is equal to also 1 2 3 up to so on. That means we have to select a from this end and b select from this end. So let a is equal to 3 from this end and b is equal to 5 from this end. Now I subtract a minus b. That means we get a minus b is equal to 3 minus 5. That means we get minus 2. And we all are know that minus 2 is not a natural number. Minus 2 is the set of integer. Okay, but minus 2 is not a natural number. But minus 2 is not a natural number. That's why hence minus is not binary operation on capital. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उसमें ही मैंने आपको क्लियर वर्ड में बोला था कि आप हमारे डोमेन में से मेंबर सिलेक्ट करेंगे a कॉमा b, और उसको हमारा बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, तो सबट्रैक्शन है, मतलब हम माइनस करेंगे दोनों एलिमेंट्स का, a माइनस b करेंगे, और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा जो को डोमेन है उसका मेंबर कंपलसरी होना चाहिए, मस्ट बिलोंग टू अवर को डोमेन. ओके, बट here we see that minus 2 does not belong to capital N. That's why we say that means subtraction is not a binary operation on capital N. Similarly, we can prove for division also. Division from n cross n to n is given by a comma b is equal to a division b. Same as subtraction. Here a and b are natural numbers, which is we know that. Let a is equal to 3 and b is equal to 5. Same as select in our subtraction. Same select in division. Therefore a divided b is equal to a by b. We know that a division b, that means a denominator b. Now that equals to 3 by 5. 3 by 5 is we know that 3 by 5 is a rational number, okay, which is not a natural number. 3 by 5 is a p by q form. That means p by q form is called a rational number. So 3 by 5 is not a natural number, but 3 by 5 is not a natural number. That means 3 by 5 does not belong to our codomain. ओके, बट जो मैंने आपको बोला था कि मोस्ट नेसेसरी है, जो भी आपका आउटपुट का आंसर आएगा डिवीजन करने के बाद, वो हमारा को डोमेन का मेंबर कंपलसरी होना चाहिए. पर यहाँ दोनों में सबट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, दोनों में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं. हेंस डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल एन. समझ में आ गया? ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मैंने एक ही एग्जांपल दोनों में एक बताया था. ऐसे हमारे पास कई एग्जांपल्स होंगे जिसमें कि जो भी हमारा सबट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन कैपिटल एन पर नहीं आएगा, और सिमिलरली जो बाइनरी ऑपरेशन है डिवीजन के लिए वो भी नहीं आएगा कैपिटल एन के लिए. ओके, समझ में आ गया? ओके, okay, the next example is example number 31. Show that start from r cross r to r given by a comma b is equal to 4a plus 4b square is a binary operation. अभी जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 31 है उसमें हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, हमारा स्टार है ना. हमारा जनरली जो हमारा सिंबल है वही हमें दिया है इसमें. ओके, और ये जो स्टार है मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू हमें क्या दिया ऑपरेशन में, ए प्लस 4b स्क्वायर. बराबर, इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी
जो हमने जनरल फॉर्म, जब मैंने आपको डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी तब मैंने आपको बताया था कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन का जो जनरल सिंबल होगा वो क्या होगा, ए स्टार बी। तो यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, 4a + 4b स्क्वायर, और उसको हमें बाइनरी ऑपरेशन हमें प्रूफ करना है। सो हियर स्टार्ट फ्रॉम r क्रॉस r to r इज गिवन बाय a comma b is equal to a plus 4b square. Now, for every real number a and b, a plus 4b square is also a real number. Why? Reason, because for a is equal to -1, b is equal to 0. I take a is equal to -1 and b is equal to 0 because we know that both are real numbers. Okay, I put -1, a is equal to -1 and b is equal to 0 in our operation. That means a plus 4b square is equals to -1 plus 0 because the value of b is 0. That means the whole number is 0. So we get final answer is -1, and we know that the -1 is a set of integer, the member of set of integers, and the set of integer is a subset of real numbers. So we can say that the -1 is a real number. And what is the conclusion? Conclusion is that if we put the values of our domain and the output comes in our codomain, then we must say that the given operation is a binary operation. इसका कंक्लूजन क्या होगा कि हमारा जो डोमेन में हम मेंबर्स पुट करेंगे हमारा ऑपरेशन में, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा कोडोमेन का होगा, तो हम फाइनल हम लिख सकते हैं कि हेंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ऐसा नहीं है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जो मैंने सिलेक्ट किया, आप आपके हिसाब से भी सिलेक्ट करेंगे, कर सकते हैं, पर आप जो भी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे ना, ए और बी की वैल्यू, तो आपको जो भी फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका रियल नंबर ही होगा, मतलब कोडोमेन का ही मेंबर आएगा। आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हेंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन। क्या प्रूफ करना था, ये है ना। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 33। ओके, अभी जो बीच में जो एग्जाम्पल नंबर 32 है वो हम लास्ट में करेंगे। ओके, जितने भी हमारे ऑपरेशंस है जो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो चेकआउट करेंगे ना, बराबर, तो वो मेथड में हम लास्ट में करेंगे 32, क्योंकि थोड़ा वो डिफिकल्ट है, इसलिए अभी हम थोड़ा पहले जो इजी सम्स है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 33 शो दैट द कैप वी, सॉरी, सो दैट वी क्या है, ये सिंबल वी है ना, और इसका मीनिंग क्या है वो बताओ। r क्रॉस r to r गिवन बाय a, b, ये क्या सिंबल है, ये मैक्सिमम का सिंबल है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो वी का वी यहाँ पे आपको वी दिख रहा है, पर ये वी नहीं है, ये मैक्सिमम का सिंबल है, बराबर। क्या है कि a, b इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a, b, मतलब ये मैक्सिमम का सिंबल है, बराबर। एंड द कैप, इसको हम कैप से जानते हैं, पर ये कैप नहीं, ये मिनिमम का सिंबल है, बराबर। तो कैप फ्रॉम r to r गिवन बाय a, b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a, b आर बाइनरी ऑपरेशन। चलो सबसे पहले हम v की बात कर लेते हैं। v क्या है, v का मतलब कि हमारे पास जो डोमेन है r क्रॉस r, बराबर, उसमें से हमारा a, b हमारा जो पेयर निकलता है, बराबर ना, r क्रॉस r मीन्स पेयर्स, बराबर। तो जो उसमें से हम a, b सिलेक्ट करेंगे, बराबर, तो वो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा नंबर है वो फाइनल आंसर होगा। ये ऑपरेशन क्या डिनोट कर रहा है कि जो भी हम a, b सिलेक्ट करेंगे उसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो हमारा फाइनल आंसर, वो ये ऑपरेशन डिनोट करता है। और सिमिलरली ये जो कैप है ना, मतलब मिनिमम नंबर, जो हम a, b सिलेक्ट करेंगे वो दोनों में से मिनिमम नंबर कौन सा है वो फाइनल आंसर इसमें आएगा, बराबर। तो वो दोनों हमें क्या प्रूफ ही करना है कि दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, और किस पर है, तो कैपिटल R पर। चलो तो सबसे पहले हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। फॉर मैक्सिमम हियर v from r cross r to r is given by, और I say here maximum from r cross r to r, ये ठीक रहेगा ना। ओके, here maximum from r cross r to r given by a, b is equal to maximum of a, b, मतलब हम r cross r में से पहले r में से a और दूसरे r में से b हम सिलेक्ट करेंगे, और दोनों में से कौन सा वाला नंबर मैक्सिमम होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। चलो, नाउ फॉर एवरी रियल नंबर a and b, मैक्सिमम ऑफ a, b इज ऑल्सो अ रियल नंबर, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ a, b का मीनिंग क्या होगा, तो मैक्सिमम ऑफ a, b की वैल्यूज हम उसमें पुट करेंगे और इज इक्वल टू हमें एक आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर। तो वो आंसर क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। कैसे, यहाँ पे रीजन, फॉर a इज इक्वल टू -3, मैंने a इज इक्वल टू -3 सिलेक्ट किया, और एंड आई टेक b इज इक्वल टू -7, सो आई सिलेक्ट a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 7। नाउ
मैक्सिमम ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ -3 कॉमा -7। इसका मतलब -3 और -7 में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है, कौन सा नंबर लार्जर है, कौन सा नंबर बड़ा वाला है, कौन सा है? -3 से -7, ऑब्वियसली -3 होगा। आपको जो डिजिट है ना उस पर फोकस नहीं करना है, आपको साइन पर फोकस करना है, क्योंकि आपको पता होगा सपोज -3 मैं हूं तो -7 कहाँ आएगा? ये -4, -6, -5, -6 एंड -7। समझ में? नेगेटिव साइड जा रहे हैं, बराबर। और जैसे जैसे हम नेगेटिव साइड जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका नंबर कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, बराबर। बिकॉज -7 से -6 बढ़ा, -6 से -5 बढ़ा, ऐसे ही -3 बड़ा हुआ इज इक्वल टू -3 एंड वी नो दैट -3 इज अ set of integers, the member of set of integers, and we know that set of integers is a subset of real numbers. That's why -3 is also a real number. Hence, maximum is a binary operation on capital R. And similarly, we prove for minimum here, minimum from R to R to R is given by a comma b is equal to minimum of a comma b. मतलब a comma b हम जो सिलेक्ट करेंगे उसमें से जो मिनिमम नंबर होगा वो हमारा फाइनल आंसर। Now, for every real number a and b, minimum of a comma b is also a real number. Why? Here the reason for a is equal to -10, b is equal to -7, सेम जो हमने मैक्सिमम ने जो नंबर्स हमने सिलेक्ट किए वही नंबर हम मिनिमम में कर लेते हैं। मिनिमम ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ -3 कॉमा -7। अभी यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा आपका? -7, क्योंकि -7 इज अ स्मॉलर नंबर देन -3, so is equal to -7 and therefore -7 is a real number. We know that -7 is a real number. और आपको पता ही है कि आप डोमेन में से नंबर सिलेक्ट करेंगे और जो आपका ऑपरेशन है उसमें हम पुट करेंगे और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो किसका मेंबर होना चाहिए? कंपलसरी कोडोमेन का होना चाहिए। दैट्स व्हाई मिनिमम इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल आर। सो हमें जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया? ये तो मेरे हिसाब से मैंने ये एग्जांपल्स, मतलब ये ए और बी की वैल्यू मैंने सिलेक्ट की। ऐसे आप आपके हिसाब से आपके जो मनपसंद नंबर है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? गुड। चलो, ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। इन एग्जांपल नंबर 30 कौन सा देखा हमने लास्ट? अभी 33 जो मैक्सिमम और मिनिमम पर डिपेंडेंट था। चलो, अभी हमारा जो नेक्स्ट सम है वो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो, तो खुशी की बात है कि हमारा लास्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो ही गया है और ऐसे ही 2-3 लेक्चर्स में हमारा ये पूरा चैप्टर में भी कंप्लीट हो ही जाएगा। चलो, तो डिटरमाइन विद और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। इसका मतलब कि हमें थोड़े क्वेश्चन नंबर 1.4 का एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कितने भी होंगे, 2, 3, 4, 5 ऑपरेशन हमें देंगे। स्टार मीन्स हमारे स्टार का डेफिनेशन है ना वो हमें दिया जाएगा। मतलब ए स्टार बी की जो वैल्यू है, मतलब ए स्टार बी क्या है तो हमारा ऑपरेशन है, बराबर, मीन्स बाइनरी ऑपरेशन है। तो ऐसा कोई हमें ऑपरेशन क्वेश्चन में देंगे और वो ऑपरेशन जो भी है वो बाइनरी है या नहीं वो हमें चेकआउट करना है। ओके, अभी जो अब तक हम जो करते आ रहे हैं वही है, पर अभी क्या होगा, अभी जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो प्रॉपर हमारा जो मेन डेफिनेशन है ना, मतलब ए स्टार बी, वैसे आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। मतलब ए स्टार बी अब तक हमने क्या देखा, तो ए कॉमा बी, मतलब जो पैर में ए कॉमा बी थ्रू हमने डेफिनेशन जो आंसर में हम लिखते थे, पर अब हम क्या लिखेंगे, ए स्टार बी हम लिखेंगे। यूजुअली हम जो नोटेशन यूज करते हैं तो ए स्टार बी ही नोटेशन यूज करेंगे। और आपको एग्जाम में भी जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में तो ए स्टार बी ही आपको दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात, बाइनरी ऑपरेशन पर डिपेंडेंट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? इस पर डिपेंडेंट एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप चलो, सबसे पहला नंबर 1 ऑन जेड प्लस, मतलब जो हमारा मेन सेट क्या है, कौन सा सेट है, विच इज द मेन सेट फॉर अस? Z plus that means set of positive integers. Understand? Okay. Define star by A star B is equal to A minus B. वही हमने जो सबसेक्शन वाला दिखा था ना वही है, पर यहाँ पे हमें A स्टार B थ्रू दिया है। मतलब स्टार जो है वो हमारा ऑपरेशन मेन है। चलो, तो सबसे पहले ही स्टार फ्रॉम Z plus क्रॉस Z plus to Z plus is given by
ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, बराबर, क्योंकि ऑन जेड प्लस हमें दिया है, मतलब जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे वो किसके मेंबर होंगे, तो जेड प्लस के मेंबर होंगे। दैट मीन्स द ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू अवर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सो वी मस्ट टेक द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी positive from z plus. Now a and b are positive integers. Let I take two elements, a is equal to 2 and b is equal to 5. I select a and b both are positive integers. That means a is equal to 2, b is equal to 5. Therefore a star b is equal to 2 star 5 is equal to, now compare with our original definition. I put a is equal to 2 and b is equal to 5. So the changes on RHS side विच इज 2 माइनस 5। इसका मतलब जो हमें ए के जो प्लेस है, ए का जो प्लेस है उसके प्लेस पर हमने 2 पुट किया और बी के प्लेस पर हमने 5 पुट किया। तो इसका मतलब जो आरएचएस हमें दिया है, आरएचएस क्या है, तो ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी के जो स्थान पर है, बराबर, जो प्लेस है उसके प्लेस पर भी हम वही वैल्यूज पुट करेंगे। जो ए के स्थान पर क्या है, तो 2 है, ये देखो, और बी के स्थान पर 5 है, तो यहाँ पे 5 है। समझ में आ गया? सो 2 minus 5, that means we get -3, and we all know that -3 does not belongs to z plus, because -3 is a negative integer which is does not belongs to z plus. So but -3 does not belongs to z plus, hence star is not a binary operation on z plus. Understand? क्योंकि हमने जो डोमेन में से मेंबर्स हमने सिलेक्ट किए, हमारा बाइनरी ऑपरेशन उस पर हमने अप्लाई किए, और जो फाइनल आंसर हमें जो मिला, क्या मिला, तो -3 मिला। वो जो हमारा कोड डोमेन है उससे मैच नहीं हो रहा, उसका मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू हो रहा है, इसलिए फाइनल आंसर स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, क्योंकि हमारा जो मेन जो ऑपरेशन है वो क्या है, तो हमारा स्टार है। और अभी यहाँ से जितने भी हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें जो जनरल नोटेशन हम यूज करेंगे वो स्टार ही होगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि स्टार इज अ जनरल नोटेशन फॉर बाइनरी ऑपरेशन। सो नेक्स्ट वन, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। चलो, सेट तो हमारा सेम एज इट इज है, सिर्फ हमारा जो ऑपरेशन है वो चेंज हुआ है। यहाँ सब्सट्रैक्शन था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। हियर स्टार फ्रॉम z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस इज गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू a b। नाउ फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, for positive integer a and b, a b is also a positive integer because we know that the multiplication of two positive integers is a positive integers. समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? सपोज मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर में 10 है और 15 है, सो दोनों का मल्टीप्लाई मुझे 150 मिलेगा, और 150 भी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट ऐसे याद रखिए, प्लस इंटू प्लस, दैट मीन्स वी गेट प्लस। ओके, और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैंने a इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट किया और b इज इक्वल टू 7, बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर a स्टार b इज इक्वल टू 2 स्टार 7 is equal to 2 into 7, that means 14, 7 to the 14, and 14 is a belongs to z plus because 14 is a positive integers, we all know that, hence star is a binary operation on z plus. सिंपल है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, आपको डोमेन में से मेंबर्स लेने हैं और हमारे ऑपरेशन में पुट करना है रिलेटेड टू अवर ऑपरेशन। जो भी हमारा क्वेश्चन का ऑपरेशन है उससे रिलेटेड हमें वैल्यूज पुट करनी है, जो हमें ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा। According to that operation, we put the values of our a and b. So star is a binary operation on z plus. So second तो हमारा binary operation आ गया, first हमारा नहीं है। अभी हम थर्ड की बात करते हैं on r, और यहाँ पे हमारा सेट कौन सा है, तो कैपिटल R है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल टू a b स्क्वायर। चलो, हियर स्टार फ्रॉम r क्रॉस r टू r इज गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू a b स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे a अलग है और b स्क्वायर, समझ में आ रहा है? a अलग है और b स्क्वायर अलग है, दोनों का मल्टीप्लाई है, बराबर। a इंटू बी स्क्वायर है, नॉट ए बी होल स्क्वायर है, a इंटू बी स्क्वायर है। चलो, नाउ फॉर एवरी रियल नंबर a एंड b, a b स्क्वायर इज ऑल्सो रियल नंबर्स, बिकॉज ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, सिंपल ही है, बराबर ना। चलो, फॉर एग्जाम्पल मैंने a और b दोनों को नेगेटिव ही सिलेक्ट किया है। चलो, a स्टार b इज इक्वल टू -1 स्टार -2, दैट मीन्स -1 इंटू -2 होल स्क्वायर, और -2 होल स्क्वायर का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पे इंटू -1, दैट मीन्स वी गेट -4, एंड वी ऑल नो दैट -4 विच इज बिलोंग्स टू r, क्योंकि -4 रियल नंबर का ही मेंबर है, हेंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन r। सो ये हो गया आपका थर्ड वन। समझ में आ गया? जो अब तक हमने किया है वही यहाँ पे भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो गुड, शांति से एक बार
ये सब ऑब्जर्व कर लीजिए और देख लीजिए। So the next sum is exercise 1.4 question 1 fourth sum. Fourth sum is on z plus define star by a star b is equal to modulus of a minus b. चलो तो हमारा जो मेन सेट है वो कौन सा है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. So here star from z plus cross z plus to z plus is given by a star b is equal to modulus of a minus b. चलो तो हम डोमेन में से मेंबर्स लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मॉड्यूलस है. मॉड्यूलस है इसका मतलब कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आउटपुट आएगा, वो भी कैसा होगा, तो पॉजिटिव ही होगा. और विच इज बिलोंग्स टू z प्लस. सो ये जो हमारा ये ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन आएगा. सो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b modulus of a minus b also positive integers, because for a is equal to 7, b is equal to 14, a star b is equal to 7 star 14 is equal to modulus of 7 minus 14. a का जो प्लेस है उसके प्लेस में हमने 7 रिप्लेस किया और b के प्लेस पे 14 रिप्लेस किया. सो कंपेयर टू अवर ओरिजिनल ऑपरेशन विच मे चेंज modulus of 7 minus 14, so we get modulus of minus 7 and finally we get positive 7 and 7 belongs to z plus, therefore star is a binary operation on z plus. और लास्ट है हमारा फिफ्थ ऑन z प्लस डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल टू a. इसका मतलब कि a स्टार b हम हमारे ऑपरेशन में पुट करेंगे तो जो a की भी जो वैल्यू होगी ना वही हमारा आउटपुट होगा. मतलब हम a इज इक्वल टू 2 लेंगे और b इज इक्वल टू 7 लेंगे तो 2 स्टार 7, सो वी गेट 2. जो हम a सिलेक्ट करेंगे वही आपका आउटपुट होगा. देख सकते हैं आप a स्टार b इज इक्वल टू a. सो ऑब्वियसली कि हम a की वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीजर्स में ही सिलेक्ट करेंगे. सो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स में से ही सिलेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स का ही मेंबर होगा, मतलब आउटपुट जो आएगा वो कोडोमेन का ही मेंबर होगा. सो गिवन बाय a स्टार b is equal to a. Now for every positive integer a and b, a is also positive integers because for a is equal to 2 and b is equal to 7, therefore a star b is equal to 2 star 7 is equal to 2. अब देख सकते हैं मैंने a is equal to 2 सिलेक्ट किया तो आउटपुट मुझे 2 ही मिलेगा. समझ में आ गया. So 2 belongs to z plus because 2 is a positive integer, hence star is a binary operation on z plus. So ये हो गया आपके जो दो बाकी थे हमारे. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. इजी है ना, एकदम शांति से आप ये कंप्लीट कर लीजिए. अभी हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं उस पर डिपेंडेंट हमारा एक ही सम है. बाकी है जो हमने एग्जाम्पल 32 हमने जो स्किप किया था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले वो कंप्लीट करेंगे. उसके बाद थोड़ी डेफिनेशन से वो हम कंप्लीट कर देंगे और मे बी नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में मे बी हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा. ट्राई करेंगे हो जाएगा, नहीं तो एक आध लेक्चर और लगेगा पर. सो आई होप कि आज हमने जितना भी सीखा है आपको समझ में आ गया. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं. तब तक ये सब प्रॉपर रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. थैंक यू.